Welcome you all. Myself, Mr. Sandeepan Badelia, and today we will discuss about limit test for sulfate. In your examination, question will be asked in this manner that define limit test and explain limit test for sulfate. So उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, you have to give the definition of limit test and you have to explain the limit test for sulfate. Definition of limit test. Limit tests are either qualitative or semi-quantitative test. Qualitative or semi-quantitative test that design to control small quantities of impurity that is present in the substance. तो कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्यूरिटी अगर प्रेजेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी क्वालिटेटिव या तो सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिज़ाइन की गई है उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट. नाउ वी विल मूव ऑन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट. फर्स्ट वी विल मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट. द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट is based on the reaction between barium chloride and soluble sulfate. Barium chloride and soluble sulfate in presence of dilute hydrochloric acid that will produce barium sulfate compound that will be insoluble in dilute hydrochloric acid. So by the reaction between barium chloride and soluble sulfate, barium sulfate turbidity will be produced, and this turbidity or barium sulfate precipitates are insoluble in dilute hydrochloric acid, and chloride ion that are liberated that will be present in the solution. The formed barium sulfate will make the solution turbid. तो उसके कारण क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो टर्बिड हो जाएगा. द टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट विल बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड. तो टेस्ट की टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करनी है. द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सल्फेट दैट इज प्रेजेंट इन द सैंपल. सो द एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी मतलब कि टर्बिडिटी की मात्रा वो किस पे निर्भर करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सल्फेट दैट इज प्रेजेंट इन सैंपल. सैंपल के अंदर सल्फेट का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो टर्बिडिटी ज़्यादा मिलेगी, अगर सल्फेट का अमाउंट कम है तो टर्बिडिटी कम मिलेगी. सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट. These are two Nessler cylinder that we will use for the limit test of sulfate. One we will label as test and another one we will label as standard. दोनों नेस्लर सिलेंडर सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट हमें लेबल करना है, एक को टेस्ट और एक को स्टैंडर्ड. In the test Nessler cylinder we will take 1 ग्राम एक्यूरेटली वेड टेस्ट सब्सटेंस. तो टेस्ट नेस्लर सिलेंडर के अंदर हम लेंगे 1 ग्राम एक्यूरेटली वेड टेस्ट कंपाउंड. स्टैंडर्ड जिसको लेबल किया है स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर, इन दैट वी विल ऐड 1 ml 0.1089% weight by volume solution of potassium sulfate. This is the standard solution, standard sulfate solution. 108.9 gram per mole, it is the molecular weight of potassium sulfate. That's why 0.1089% weight by volume, it is a concentration of standard sulfate solution that we will take 1 ml. 1 ml हमें ये लेना है. दोनों नेस्लर सिलेंडर के अंदर, in both नेस्लर सिलेंडर we will add 2 ml dilute HCl solution. We will add 2 ml dilute HCl. After that, we will dilute both the Nessler cylinder
अप टू 45 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। तो 45 ml तक हमें डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करना है दोनों नेस्लर सिलेंडर को, टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों को। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, 45 ml डिस्टिल वाटर नहीं ऐड करना है, वी विल ऐड 42 ml डिस्टिल वाटर बिकॉज 1 gram 2 ml, previously we have taken approximately 3 ml, so in this अप टू 45 ml मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 42 ml जितना डिस्टिल वाटर ऐड करना रहेगा। देन वी विल ऐड 5 ml बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन इन बोथ नेस्लर सिलेंडर। आफ्टर दिस turbidity will be produced in taste and standard. When we add this barium sulfate solution, turbidity produced in both taste and standard Nestler cylinder. ये turbidity हमें कंपेयर करना है, the turbidity that is produced in taste Nestler cylinder that we will compare with the standard Nestler cylinder. Now one modification is there, barium chloride solution that is mentioned in IP means Indian Pharmacopoeia, has now been replaced with barium sulfate reagent. बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो आईपी में मेंशन किया गया है, नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ये बेरियम सल्फेट रिएजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है? इट कंटेन्स बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन, दिस थ्री आर प्रेजेंट इन बेरियम सल्फेट। ये रीज़न क्या है इनका? पोटेशियम सल्फेट, दिस पोटेशियम सल्फेट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। लिमिट टेस्ट की ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, इसके कारण क्या होता है, इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट कैन बी प्रेसिपिटेटेड। अगर बेरियम सल्फेट बहुत कम अमाउंट में भी होता है तो भी ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। अल्कोहल प्रिवेंट्स सुपर सेचुरेशन एंड प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म ओपेलेंस। तो अल्कोहल के कारण क्या होता है कि यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखती है। द टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। तो टेस्ट के अंदर जो भी टर्बिडिटी मिलती है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। इफ द टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड, तो टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड से कम टर्बिडिटी मिलती है, देन द टेस्ट सैंपल पासिस द लिमिट टेस्ट एज पर IP 2018। तो टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड से कम टर्बिडिटी मिलती है तो ये हमारा टेस्ट सैंपल लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू IP 2018। पर ऐसा नहीं है, अगर इफ टर्बिडिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड, अगर टेस्ट के अंदर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा मिलती है, then the test sample fails the limit test as per IP 2018। तो क्या होगा, हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा एज अकॉर्डिंग टू IP 2018। So this is all about limit test for sulfate. So whenever question asked in your examination, you have to mention all these things in your examination. So over, we will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.